Good morning, all of you. Myself, Vimla Patel. Today we start with our social science subject. First, start with history. We have three subjects: history, geography, and civics. In history, chapter 1, what, where, how, and when. We start with our first chapter: what, where, how, and when. In the 6th standard, first time we were introduced with the social science subject. In the previous class, you have environmental studies, but this year you have first time a social science subject. History. What do you understand by the word history? History is the study of our past. History is the study of our past. जो प्राचीन लोगों के बारे में, जो उसका सिविलाइजेशन कैसे रहते थे, उनके बारे में हमको स्टडी करना है. वही है मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. द नॉलेज गेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ द पास्ट एंड द प्रेजेंट. कि व्हाई वी नीड टू स्टडी द सब्जेक्ट हिस्ट्री? वी हैव टू गेन द नॉलेज. हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, प्राचीन के समय के लोग थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, उनके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए. और वही हमको ये प्रेजेंट में भी उसकी इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए. पीपल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, बट वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्टरी. इन एवरी चैप्टर वी हैव द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. हियर इज द वन गर्ल, Rasida. Rasida is standing near the newspaper. Suddenly her eyes fell on the small headline, 100 years ago. उसके मन में सवाल आया, 100 years ago. आपको सबको पता है, अद्भुत 100 साल पहले की बातें. पहले क्या हुआ होगा 100 साल पहले, so many years ago. उनको एक दिन का याद नहीं रहता है, तो 1 week का याद नहीं रहता है. रेडियो में देखते हैं, वो लिसन करते हैं, वॉच करते हैं टेलीविजन, रीड न्यूज पेपर. तो लास्ट ईयर सम बड़ी हु रिमेम्बर्स आज सम बड़ी, तो हमको 100 साल पहले, लॉन्ग अगो पहले का कैसे याद रह सकता है? हाउ कैन इट बी डन? वो उसको मन में क्वेश्चन आता है रसीदा के. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. पास्ट के बारे में हमको कैसे समझना है? व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. In the previous time, people lived near the on the bank of the Narmada Valley. There are several things we can find out. What people ate, food, what people ate, clothes, what kinds of clothes. First what kinds of clothes they wear, and houses where they live. We can find about the different people, those who are living before so many years ago. They are the hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craft persons, artists, musicians, and scientists. We can also find about the games children played, the stories they heard, and the plays they saw, the songs they sang. Now, where? Next concept is about where. Where? Where? Where did people live? Students, आप ही बताओ कि in the past, in the previous, long ago, people कहाँ रहते थे? आप कहोगे मैम वहाँ तो घर नहीं होते थे, हट में रहते होंगे, या तो वो ट्री के अंडर द ट्री रहते होंगे. But people have lived along the banks of this river for several hundred years ago. Yes, on the banks of the Narmada river they are living. The earliest of them were skilled gatherers, people who gathered their food and the vast wealth of the plants in the surroundings
forest and collected roots, fruits and other forest produce for their food. So in the previous, people are from one place to another place going. They are hunter gatherers. they हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, फूड कलेक्टर थे और फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना फूड वो लेते थे. दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. नाउ here there is a one map, is a map of subcontinent, and in that some of the areas where women and men first began to grow crops such as the wheat and barley about 800 years ago. And people also began rearing animals like sheep, goat and cattle, and they lived in the villages. Here Garo Hills you have to marking in the map and lived in the village. Locate the Garo Hills to northeast and Vindhyas in central India. So in this map you have to locate these two places, and these were some of the other areas where agriculture developed. And the places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. तो जो प्लेस है जहाँ पर फर्स्ट टाइम राइस उगाया था, नॉर्थ ऑफ द विंध्यस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस रिवर, मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. Tributaries are small rivers. And Indus river like Ganga river, main river. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of this river. Indus river is the main river and its tributaries, मतलब जो बोलते हैं मेन रिवर होती है, उसके अंदर से जो उसका सन कहलाता है वो अलग अलग रिवर निकलती है, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. In earlier cities flourished on the banks of this river. Later, about 2,500 years ago, after that 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and the tributaries. Like Indus River and its tributaries, the area flourished, and the people are lived on the banks of the Ganga also and its tributaries, along with sea coast. Now you have to locate in the another map Ganga river and its tributaries called सन कहते हैं. गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज को सन कहते हैं. And in ancient time, the area along this river to the south of the Ganga was known as Meghdha, now lying in the state of Bihar. Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. Throughout, the people traveled from one part of the subcontinent to another. The hills and high mountains, including the Himalaya, desert, rivers and seas, made journeys dangerous at times, but never impossible. So men and women moved to search of livelihood. One thing you have to keep in your mind, students, that people have to move from one place to another for their shelter, food and livelihood, as also to escape from natural disaster. और उनको बचना था साथ में नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक. वो हिमालय तक जर्नी करते थे, माइग्रेशन करते थे, डेजर्ट, रिवर वैली, सीज, वो सब उनके इन मिडल में आता है. समटाइम्स मैन मार्च आर्मीज कॉन्करिंग अदर लैंड्स. बिसाइड मर्चेंट व्यापारी के अलावा ट्रैवल्ड विद द मर्चेंट, किसमें ट्रैवल करते थे, कारवान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. Finally, some people perhaps driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All this led to the sharing of ideas between people. In short, all have to travel from place to place. In that include merchants, religious people. They have to share their ideas, and all the have to between the people share their ideas. Now next is why do people travel nowadays? ये तो हमने पास का देखा कि people travel करते थे for searching their livelihood. But nowadays, why do people travel nowadays? Why do people travel nowadays? You can tell the students कि nowadays, for example, how by which vehicle you can come to the school.
obviously your answer school bus. Somebody says walking, अगर नियर डिस्टेंस है. आपके फादर उनके ऑफिस प्लेस पे कैसे जाते हैं तो आप कहेंगे मैम पर्सनल कार है. आपके फोर फादर उनके टाइम पे बुलक कार्ट था. Yes, once more hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was difficult to cross this frontier, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. आपको सबको पता है माउंटेन और सीज को क्रॉस करना डिफिकल्ट होता था. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. जो हमारे बाहर के फ्रंटियर्स के कंट्री से आती थी उनके लिए डिफिकल्ट होता था. And these movements of people enrich our cultural traditions. People have shared new ways of carving stone, composing music, and even cooking food over several hundreds of years. Now, new names of the land. Now here land. तो सब कॉन्टिनेंट हमारा जो इंडिया है ये पहले हाउ इट फ्रॉम वेयर इट वर्ड इंडिया एंड भारत कम्स. द टू ऑफ द वर्ड्स इंडिया एंड भारत. Our country name are two words, India and Bharat. The word India comes from the Indus river and called Sindhu. In Sindhu language is called Sindhu. Sanskrit language called Sindhu. हम बोलते हैं सिंधु नदी, सिंधु रिवर हिंदी में. वही सेम रिवर है इंडस. इन संस्कृत they call Sindhu. In the Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago were familiar with the Indus, called the Hindus or the Indus. And the land to the east of the river was called India. It means same word, Bharat, spelled different people differently. For example, Greeks and in the northwest familiar with the Indus, but they spell Hindus or Indus. And in the another name is India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda. In the Rig Veda, the word Bharat is mentioned. And the earliest composition in Sanskrit dated 3500 years ago. Later it was used for the country. Now we use the name India. Finding out about the past. Next topic, finding out about the past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for and read books that were written long ago. सिंपल वे है, अगर आपको पास्ट के बारे में जानना है तो फर्स्ट मेथड है हमारा हिस्ट्री. जो पहले लिखी हुई होती है वो बुक को हम रीड करें. जो पहले के लोगों ने लिखा है वो हमको देखे तो हमको हिस्ट्री के बारे में समझ में आएगा. उसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स. Manuscripts, because they were written by hand, and it comes from the Latin word manu, meaning hand. These were usually written on palm leaf. जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है वो पाम, हमारे पाम की जितना हैंड होता है उतने लीफ होते हैं. उसके पहले के जमाने के लोग उसमें लिखते थे. These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as birch. और जो ये लीफ होते थे वो bark of the tree known as a birch tree which grows in the Himalayas. और birch tree हिमालय में ग्रोन होते थे. Over the years टाइम चलता गया मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन अवे. हम कहते हैं जो हैंड रिटन होते हैं पाम लीफ होते हैं इंसेक्ट्स उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खा लेते हैं. सम वर डिस्ट्रॉय हो गए एंड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड. थोड़े बहुत सर्वाइव्ड है पर वेयर वी इट प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. These books dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices. The lives of kings. भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है पहले के हिस्टोरियन जो उन्होंने ये बनाए तो उसके लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के बारे में, उनके कैसे लाइफस्टाइल थे, मेडिसिन, साइंस. बिसाइड देयर वर एपिक्स जो हमारे ग्रंथ होते हैं उसमें हम इंक्लूड करते रामायण, महाभारत.
और भगवत गीता जो हमारी होली बुक है वो भी एक एपिक में रामायण एंड महाभारत आते हैं, हमारे ग्रंथ है वो। एंड पोएम्स, प्लेस, मैनी ऑफ दिस वर रिटन इन संस्कृत एंड अदर वर रिटन। तो ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज होती थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज ऑर्डिनरी पीपल यूज करते थे, और जो ब्राह्मण्स होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज यूज करते थे। एंड ऑर्डिनरी पीपल इन तमिल में वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। मैन्युस्क्रिप्ट्स के अलावा स्टडी करते थे हम इंस्क्रिप्शन। तो हमको इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में। इंस्क्रिप्शन, दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलायबली हैंड सरफेसेस, हार्ड सरफेसेस। तो हार्ड सरफेस पे लिखा हुआ होता है। दोनों के डिफरेंसेस है, हैंड रिटन है मैन्युस्क्रिप्ट्स, जब भी उसके सामने इंस्क्रिप्शन है वो हार्ड सरफेस। तो हार्ड सरफेस में वुड, स्टोन, उसके ऊपर वो लोग कार्विंग करके वर्ड बनाते थे। रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. इंस्क्रिप्शन क्यों बनाते थे, क्यों जरूरी था? तो किंग को कुछ ऑर्डर देना है, कुछ ऑर्डर मिला है, तो पीपल इंस्क्रिप्शन देखते थे, सी करते थे, रीड करते थे और उसको फॉलो करते थे, ओबे करते थे। इसके लिए इंस्क्रिप्शन। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज वेल देयर आर मेन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। कभी कभी जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उन्होंने अगर कुछ किंग्स इंक्लूडिंग किंग्स इनके राजा रानी को जो उन्होंने रिकॉर्डिंग करना है, कुछ बैटल समझे उन्होंने विक्ट्री करी है बैटल में, तो वो भी उसका इंस्क्रिप्शन बनाते, ऑर्डिनरी पीपल उसको देखते थे। नाउ नेक्स्ट, देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। हमारे पास दो वर्ड है, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट, those who study these objects are called archaeologists. Archaeologist is a person, एक पर्सन है जो पास्ट के ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करता है। पास्ट के थिंग्स होते हैं, अदर थिंग, मैनी थिंग्स होते हैं जो यूज हुए होते हैं, वो स्टडी करने वाला जो पर्सन है उसको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, dig under the surface of the earth to the find tools, weapons, pots, pans and ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, some of the bone, bark, clay or metal. Objects that are made of hard, imperious or substances usually survive for a long time. Archaeologists also look for the bones of animals, birds and fish. Archaeologists find out the and study about the past. ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते थे, बोन्स ऑफ एनिमल्स, तो उसे पता चलता था कि बोन्स उसको अगर मिले तो कौन से एनिमल, फॉर एग्जांपल डॉग का बोन है तो वो समझ जाते थे कि पास्ट में डॉग एनिमल थे। बर्ड्स के फेदर से उनको पता चलता था। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, तो वो स्टडी करते थे। क्यों? कि उनको पता करना था कि पहले के लोग क्या खाते होंगे, कि कौन से एनिमल होते होंगे, क्या ऑब्जेक्ट होते होंगे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फॉर मैन मोर रेयरली इफ सीड्स और ग्रेन और पीस ऑफ वुड have been burnt. They survive in the charred form. Historians. Next concept is historian. Historian means scholars. They also study the past. He is a person who study the past. Like archaeologist, he is also a person who study the past. Often use the word source to refer to the information found from manuscript. अभी ये स्टडी करते थे, पर वो उनको सोर्सेस क्या थे? तो उनके सोर्सेस थे मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड द आर्कियोलॉजी। वन सोर्सेस आर फाउंड, अगर एक बार उनको सोर्सेस मिल गए हिस्टोरियन को, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। उनके लिए फिर वो एडवेंचर हो जाता था, अद्भुत हो जाता था, लाइक डिटेक्टिव। तो ये जो टू पर्सन है, हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, वो डिटेक्टिव है, जासूस है। वो पहले के क्लू निकालकर वो स्टडी करते थे पास्ट के बारे में। नाउ अगर लास्ट टॉपिक, लास्ट कंक्लूजन, वन पास्ट और मैनी। अभी आपकी बुक का नाम है अवर पास्ट, रूरल फॉर्म में है, PAST पास्ट। तो आपके मन में ख्याल आता है कि मैम हिस्ट्री एक है कि बहुत है? तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पीपल आए हैं, तो उन्होंने वो टाइम पर जो करा है वो डिफरेंट है। मतलब हमारी हिस्ट्री वन नहीं है, मैनी है, प्लूरल फॉर्म।
डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल किंग एंड क्वींस आए, फिर लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स अलग डिफरेंट है फ्रॉम दोस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, किंग्स और क्वीन की लाइफ डिफरेंट है फ्रॉम हर्डर्स और फार्मर्स, नाउ सो ऑन. एंड द ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट कस्टम फॉलो होते हैं, मोस्ट पीपल फॉर एग्जाम्पल अंडमान आइलैंड पे जो पीपल रहते हैं वो गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट. बाय कॉन्ट्रास्ट उनके कॉन्ट्रास्ट में उनके सामने डिफरेंटली मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज, सिटीज में जो पीपल रहते हैं डिपेंड ऑन द अदर्स ऑफ सप्लाईज ऑफ फूड. मतलब सिटी पीपल को विलेज पीपल पे डिपेंड रहता है फॉर उनके फूड के लिए. एंड डिफरेंट सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल. सेम ऐसे ही जब भी हमारा आफ्टर बोलते हैं, बिफोर बोले तो पास्ट हिस्ट्री, तो अभी जो हम रह रहे हैं वैसे ही जो हमको भी सिटी पीपल को विलेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, पास्ट में भी वैसा था. बिसाइड देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट द किंग्स एंड द बैटल्स they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunter, fishing, fog gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. स्टूडेंट आपके मन में ख्याल आता होगा, किंग सम मेन पर्सन होता है, राजा जो होता है वो अपनी विक्ट्री जो उन्होंने बैटल करे हैं, जो लड़ाइयाँ करी है उसमें जीत हुई है तो वो उसकी रिकॉर्ड रखेगा. और रिकॉर्ड कौन के किसके फॉर्म में रखेगा, का तो वो मैन्युस्क्रिप्ट बनवाएगा, का तो इंस्क्रिप्शन अच्छा है, हार्ड सरफेस पे होता है. और ऑर्डिनरी पीपल को ये सब उनको ये जो उनके रिकॉर्डिंग, पहले तो वो एजुकेटेड नहीं है, वो अनएजुकेटेड है, उसके लिए वो अपने कीप रिकॉर्ड रखते भी नहीं थे, क्या करते थे. While archaeology help us to find about their lives, there is much that remains unknown. आज भी आर्कियोलॉजी को जो थोड़ा ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने फाइंड आउट नहीं करी है तो वो आज भी रिमेन अननोन है. व्हाट डू डेट्स मीन? अभी हम कह रहे डेट्स हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स. तो व्हाई वी नीड इंपॉर्टेंट डेट्स, व्हाट इट मीन्स. इफ समबडी आस्क यू द डेट, अगर आपको कोई पूछे डेट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट चलो आज कौन सी डेट है तो आप बताओगे 8, 9, 10 जो भी डेट है वो बताओगे. डेट के बाद आप बताओगे मंथ, मंथ के बाद बताओगे ईयर 2020 और मंथ है हमारा जून, वैसे हम डेट लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 10 जून 2020 और 10 जून 20. दिस ईयर आर काउंटेड फ्रॉम जनरल. तो जो ये डेट काउंटेड करने का जो टाइम फाउंडर, इसका डेट को फाउंडर थे जीसस क्राइस्ट, जो लॉर्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी, फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो 2000 आफ्टर द बोर्न years, 2000 years after the birth of Jesus Christ, dates before the earth of Christ, BC and BE are counted backward and usually have letters BC before Christ. जो born date है 2000 years के before, we say that before Christ and added in the book में हम add करते हैं BC, and we will refer to the dates going back from the present using 2000, only 2000 we are writing. Okay, and these are the some letters on the hard surfaces before the person inscribed on the hard surfaces. Letter P, T, O, for example, these are the process they have did and the languages they have made and they used. Now in the next class we will start our the text exercise. For example, match the following, our question answer and activity, and some important dates we will write down in your you will write down in your notebook in the next class. Thank you.